Good morning, students. I am Megha Agrawal, your computer teacher from Nalanda Public School. Today I am giving you some MCQs that is based on lesson number 1. I have tried to cover all the book exercises in these 15 MCQs. So today I am reading out these MCQs for you all so that you does not have any problem while reading. Okay, so the first question is dash contains multiple dash contains multiple tables written on strips of board or wood or bones. So what contains multiple tables written on strips of wood or bones? Napier bone is the right answer. Options are Napier bone, Pascaline, analytical engine, none of these. So as we all have studied the chapter 1, that Napier bone was invented by John Napier in 1550 to 1617, a Scottish mathematician and scientist. And this is a device in which you can calculate, you can do the multiplication, division and taking out the square roots and cube roots. Okay, there are 9 different bones or strips with the number marked on them. Okay, so the correct answer is Napier bones. Now moving to the next question. UNIVAC is an example of dash generation of computer. UNIVAC कौन सी generation का example है? UNIVAC कितनी generations होती हैं? 5 generation. First generation, second generation, fourth generation and fifth generation. So UNIVAC is an example of first generation of computers. Options are first, third, fourth, fifth. So the correct answer is first. Next question is dash is an example of second generation of computer. Second generation of computer का example बताना है. तो जो आपके given options हैं उनको ध्यान से read करेंगे, because the examples for second generation of computer is IBM 1401 and PDP-1. These two are the examples of first generation of computer, IBM 1401 and PDP-1. But the options are IBM 370, IBM 360, IBM PC and IBM 1401. So the correct answer is IBM 1401. This one is the correct answer. Okay, now moving to the next question, that dash was the most powerful computer in the world. पूरे वर्ल्ड में सबसे पावरफुल कंप्यूटर कौन सा होता है? डैश वॉज द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर इन द वर्ल्ड. तो पूरे वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो सबसे पावरफुल कंप्यूटर कौन से होते हैं? आंसर्स आर नॉट मार्क्ड इन द MCQs. You have to mark the correct answers. Question number 4 is dash was the most powerful computers in the world. वर्ल्ड में सबसे पावरफुल कंप्यूटर्स कौन से होते हैं? So option 1 first is vacuum tube, option B is microprocessor, option C is silicon chip and option D is integrated circuit and option E is supercomputer. Okay, this is option E. Option E is supercomputer. So the correct answer is option E. Option E is the correct answer. Okay, some options are wrong here. The option should be something else, but it's okay. Mark supercomputer as the correct answer. Here I am marking out the answers for you all, that UNIVAC is the example of first generation of computer. Okay, then dash is an example of second generation of computer. IBM 1401 is an example of first generation of computer. And question number 4, that dash was the most powerful computers in the world. Then correct answer is supercomputers. Okay, now moving to the next question. Question number 5. Okay,
here. Dash are the most powerful computers in the world. Yes, this is the question. I think that question was something wrong here. Something is wrong. Please cross this question. Okay, cross question number 4. Just cross this question. Okay, just cross this question. Okay, here we are continuing with the next question. Question number 5. Dash are the most powerful computers in the world. कौन सी कंप्यूटर सबसे पावरफुल कंप्यूटर होते हैं? सुपर कंप्यूटर. सुपर कंप्यूटर्स आर दी मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर्स इन दी वर्ल्ड. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6. दैट इज डैश वॉज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस इन्वेंटेड बाय Chinese around 5,000 years ago. We have learned in the very starting of the chapter 1 that abacus was the first calculating device that was invented by Chinese around 5,000 years ago. And abacus is having strips and beads. When you move the beads up and down, the calculation is performed. Okay. So here the correct answer is abacus. Abacus is the correct answer. Now abacus is the correct answer. Now moving to the next question. Question number 7. In fifth generation researchers are focused on developing thinking computers or smart computers known as. 5th generation of computers को क्या नाम दिया गया है वो बताना है कि 5th generation of computers में रिसर्चर्स सोच रहे थे कि हम कुछ थिंकिंग कंप्यूटर्स का आविष्कार करें. कुछ थिंकिंग कंप्यूटर्स उनने बनाए जिनको सोचने वाले कंप्यूटर स्मार्ट कंप्यूटर्स बोला जाता है. तो उन कंप्यूटर्स को क्या नाम दिया गया? ऑप्शंस आर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वैक्यूम ट्यूब्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स और नन ऑफ दीज. सो द करेक्ट आंसर इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो था वो 5th जनरेशन कंप्यूटर्स हैं जिनमें हम थिंकिंग कंप्यूटर्स और टॉकिंग कंप्यूटर्स की बात करते हैं. दैट इज़ नोन एज स्मार्ट कंप्यूटर्स. Okay, now moving to next question, that is question number 8. Now question number 8. Question number 8 is thousands of integrated circuits were built into silicon chip called dash. बहुत सारे ICs बिल्ड किए गए एक सिंगल सिलिकन चिप में जिसको क्या बोला गया? जिसको बोला गया ऑप्शंस आर माइक्रो प्रोसेसर, एबैकस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नन ऑफ दिस. तो पहले सबसे पहले अगर हम फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की बात करें, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की हम बात करें अगर, तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में फर्स्ट जनरेशन में आप याद रखेंगे फर्स्ट जनरेशन में हमारे क्या यूज़ किए जाते थे? वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ किए जाते थे. अगर हम बात करें सेकेंड जनरेशन की तो सेकेंड जनरेशन में हमारे क्या यूज़ होने लगे? सेकेंड जनरेशन में हमारे यूज़ होने लगे आईसीज़ जिसको क्या बोला जाता है? इंटीग्रेटेड सर्किट्स. और हम इसको क्या बोल सकते हैं? आईसीज़ भी बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं? आईसीज़ और इंटीग्रेटेड सर्किट्स. फिर हम बात करें अगर थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की तो थर्ड जनरेशन में हमारे आ जाते हैं माइक्रो प्रोसेसर. क्या जाते हैं? माइक्रो प्रोसेसर, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर में एक सिलिकॉन चिप होती है, उसमें ऐसे कई थाउजेंड्स ऑफ आईसीज़ जो हैं वो बनाए जाते हैं. ठीक है. फिर हम बात करेंगे फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की तो फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में हमारे क्या आ गए हैं? फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में पहले हमारे क्या थे? वैक्यूम ट्यूब्स. फिर हमारे आए माइक्रो प्रोसेसर्स के बाद हमने क्या किया और डेवलपमेंट हुआ तो फिर हमारे फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, फिर सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स आए. सबसे पहले ट्रांजिस्टर्स, देन हमारे आईसीज़. थर्ड जनरेशन में ऐसे हज़ारों ट्रांजिस्टर्स मिलके एक आईसी बनी. फिर ऐसे बहुत से आईसीज़ हमारे एक सिंगल माइक्रो प्रोसेसर चिप में बनाए गए. फिर हम बात करें अगर फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर की
तो 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की गई, मीन्स टॉकिंग कंप्यूटर्स और थिंकिंग कंप्यूटर्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, सो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब हो गए, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स हो गए, थर्ड में आईसीज हो गए, फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर एंड फिफ्थ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दैट इज़ नोन एज टॉकिंग और कंप्यूटर्स और स्मार्ट कंप्यूटर्स। ओके, सो ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए। नेक्स्ट हम आते हैं, सो हियर द करेक्ट आंसर इज माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इज डैश इज कंसिडर्ड एज इंडियाज़ फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। इंडिया का यहाँ पे क्या पूछा है, इंडिया का, वर्ल्ड का नहीं पूछा, क्या पूछा है, इंडिया का सुपर कंप्यूटर कौन सा, पहला सुपर कंप्यूटर, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया। सो हियर द आंसर इज परम 8000 इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। किस चीज़ को बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, डैश इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर किसको बोला जाता है, चार्ल्स बेबेज इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। नेक्स्ट इज परम युवा 2 इज अ डैश कंप्यूटर। परम युवा 2 कौन सा कंप्यूटर है, फर्स्ट जनरेशन सुपर कंप्यूटर है, मेन फ्रेम है, मिनी है, कौन सा कंप्यूटर है। सो परम युवा इज अ सुपर कंप्यूटर। परम युवा कौन सा कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है। ओके, परम युवा कौन सा कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है। नाउ नेक्स्ट इज रे 1 वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट कंप्यूटर। रे 1 वर्ल्ड का कौन सा कंप्यूटर है, सॉरी कौन सा कंप्यूटर, रे 1 वर्ल्ड का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है। अब देखो दो क्वेश्चंस यहाँ पे आप ध्यान देंगे अगर, तो यहाँ पे आपको अभी जस्ट पूछा गया था कि इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, इंडिया का सुपर कंप्यूटर यहाँ पूछा गया था। अब यहाँ क्या पूछा गया है, वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर। तो ये दोनों क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 12 में कंफ्यूज नहीं होना। ओके, कंफ्यूज नहीं होना बिकॉज बोथ आर डिफरेंट क्वेश्चन। ओके, दोनों ही अलग क्वेश्चन है, एक में पूछा गया है वर्ल्ड का सुपर कंप्यूटर और दूसरे में पूछा गया है कि आपका इंडिया का सुपर कंप्यूटर, पहला सुपर कंप्यूटर कौन था। जब आपसे पूछा जाएगा वर्ल्ड का सुपर कंप्यूटर तो आप लिखेंगे रे 1। रे 1 हमारे वर्ल्ड का क्या है, सुपर, पहला सुपर कंप्यूटर था वर्ल्ड का। यहाँ जब पूछा गया इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है तो परम 8000 वर्ल्ड का, सॉरी इंडिया का सुपर कंप्यूटर है, पहला सुपर कंप्यूटर। नाउ नेक्स्ट इज moving to next question, that is question number 13. Okay, question number 13 says that transistor replaced vacuum tubes in dash generation of computer. अभी मैंने आपको बताया था बोर्ड पे that transistors replaced vacuum tubes. ट्रांजिस्टर्स ने रिप्लेस किया वैक्यूम ट्यूब्स को कौन सी जनरेशन में, सेकेंड जनरेशन में, बिकॉज फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स थे, उनको रिप्लेस किया ट्रांजिस्टर्स ने सेकेंड जनरेशन में। ओके, फिर थर्ड जनरेशन में हमारे आईसीज, फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर एंड फिफ्थ जनरेशन में हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये सीक्वेंस आप लर्न कर लीजिएगा। सो हियर द करेक्ट आंसर इज सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, सेकेंड जनरेशन। ओके, नेक्स्ट इज डेटा प्रोसेसिंग इज अल्ट्रा फास्ट इन डैश कंप्यूटर। कौन से कंप्यूटर्स में डेटा प्रोसेसिंग अल्ट्रा फास्ट होती थी, बहुत ज़्यादा फास्ट होती थी। हमारे सुपर कंप्यूटर जो कि एक रूम साइज बिग कंप्यूटर्स होते थे, इनकी डेटा प्रोसेसिंग स्पीड बहुत फास्ट होती थी। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1. Option 1 here is the correct answer. Okay, option A. This is how you have to prepare for your examination. Okay, so go through all the MCQs that I have just read out for you all and prepare the MCQs. In the next video I am going to give you the MCQs of lesson number 2 also.
till now you'll just prepare the MCQs of lesson number 1 and read the chapter, learn the book exercises. Okay, do this much till now. Thank you.